हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड 6 इंग्लिश मीडियम एसएसटी और हमारा पहला जियोग्राफी का लेसन यानी कि चैप्टर नंबर 10 स्पीसीज ऑफ द अर्थ। ठीक है, चलो देखते हैं। Our Earth is unique in the solar family. Earth is the only planet which has got a favorable temperature, water and life, which is valuable gift to the Earth. There is still no evidence that water and oxygen are available in the sufficient amount of the other planets. Ordinarily, we know that the Earth was just a fireball at the time of its origin. As this fireball cooled down slowly, it later transformed into many matters, respectively, like liquid and solid. In this way, the air gas around the Earth's surface came into existence. Huge ditches on this sphere were filled with the water and turned into oxygen. Thus, the extract from the Earth was created. Spheres of the Earth. There are four main spheres of the Earth: lithosphere, hydrosphere, atmosphere and biosphere. Number 1, lithosphere. Upper layer of the Earth's surface is generally made of the solid and solid matter. Lithos means solid. That is why upper layer of the Earth is known as a lithosphere. As this layer is also made up of rocks and solid matters, it is known as the rock sphere or the solid sphere. Area and formation. Upper layer of the earth crust is approximately 64 to 100 km thick. Light matter are like aluminum and the silica are mainly found in that. This layer is thin in the deep sea lithosphere, occupying about 29% of the earth's surface. Mountains and the plateaus and the plains etc. are there on the part of the land. As we go into the depth of the lithosphere, the temperature increases gradually. On moving toward the deep, the generally per kilometer 13 Celsius temperature increase. Internal rocks are melted due to the intensity heat and turn into the semi-liquid form. This molten liquid is also called a magma. It is consists of the various gases are higher pressure of the upper rock is observed. Thus, the balance is maintained between two opposite forces like pressure and heat. That is why Earth crust does not burst. Lithosphere has close relation with the biosphere and vegetation. Our home, water, farming, industries and all other are closely associated with the lithosphere. Mineral and crude oil is obtained from the lithosphere. Various crops are obtained through the farming. Various industries and other economic activities are various groups performed in the plain regions. Forest on the mountain region is indebted to the lithosphere. In the short, it can be said that the pillar from food to dwell and base of our existence means lithosphere. ठीक है, हाइड्रोस्फीयर का हम बाद में देखते हैं, पहले सुन लेते हैं लिथोस्फीयर में क्या क्या है। देखो, हम सबको पता है कि हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम के साथ एक जुड़ा हुआ प्लैनेट है। ठीक है, और पृथ्वी एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जिसमें क्या है कि हवा भी है, पानी भी है, तापमान भी है और उसमें भी जीवन भी है। साथ साथ दूसरे प्लैनेटों में वाटर और ऑक्सीजन है या नहीं है अभी भी हमें उसके बारे में कुछ पता चला नहीं है, लेकिन पृथ्वी के पास जो भी है, अर्थ के पास जो भी है, वो एक गॉड के द्वारा गिफ्टेड है, ऐसा मान सकते हैं। ठीक है, तो शुरुआत में क्या हुआ था, हम सबको पता है कि जो पृथ्वी है वो एकदम फायरबॉल की तरह थी, जलता हुआ गोला थी। फिर क्या हुआ कि धीमे धीमे ये गोला है वो ठंडा पड़ता गया और फिर क्या हुआ कि उसमें लेवल बाय लेवल, डे बाय डे क्या हो गया कि उस जो गोला है ठंडा पड़ता गया तो उसमें लिक्विड फॉर्म में और सॉलिड फॉर्म में रूपांतरित होने लगे, चेंजेस होने लगे। और फिर क्या हुआ कि उसके अर्थ के आसपास से वहाँ पे गैसेस का एक आवरण बना, फिर उसके ऊपर खड़क है यानी कि रॉक से उसका भी आवरण बना। तो इस तरह से कई सारे आवरण बने, वहाँ से महासागर भी बने। ठीक है, तो ऐसी कई सारी चीज़ें बनी। तो आज हम इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं तो पृथ्वी के आवरण। ठीक है, द स्फीयर्स ऑफ द अर्थ। तो उसमें 4 आवरण मेन है और हमें खास याद रखना है, लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है। तो हमें पहली बात करते हैं लिथोस्फीयर की। लिथोस्फीयर क्या है? ठीक है, देखो, पृथ्वी के ऊपर जो एकदम माटी से और घन पदार्थों से जो भी चीज़ बनी है ना, उसको हम क्या कहते हैं? लिथोस्फीयर कहते हैं। और लिथो का मतलब ही होता है सोइल, सोइल यानी माटी। ठीक है, और सोइल से जो भी आवरण बना हुआ है ना उसको लिथोस्फीयर कहते हैं। हाँ, लिथोस्फीयर में बड़े बड़े रॉक्स भी होते हैं, इसीलिए उसको रॉक स्फीयर और सोलिड स्फीयर भी कहते हैं। ठीक है,
अब उसके एरिया की बात करते हैं। मैं पीछे आपको मैप में सब कुछ बताऊंगा कि कितना उसका एरिया किस तरह से वर्किंग करता है। देखो, जब पृथ्वी का ऊपर का जो लेयर होता है ना, वो 64 किलोमीटर से लेके 100 किलोमीटर तक चौड़ा होता है, यानी कि उतनी उसकी लंबाई होती है। और उसमें भी स्पेशली एल्यूमिनियम और सिलिका है, ऐसे जो तत्व भी होते हैं, मिनरल्स भी उसमें होते हैं। हाँ, ये जो लेयर है ना, जो लिथोस्फीयर की लेयर, वो जो ओशियन होता है यानी कि समुद्र होता है ना, उसके अंदर भी होती है, ठीक है। और पृथ्वी की जो सपाटी है ना, उसमें 29% ये भाग उसको रोक के रखता है। कि मान लो कि ये पूरा अर्थ है तो उसका 29% है ना, ये 29% है, तो उतना क्या है, लिथोस्फीयर है। ओके, और उसमें पर्वत भी है, उच्च प्रदेश भी है, मैदान भी आए हुए हैं। और जैसे जैसे उसमें हम अंदर जाएंगे, मतलब कि लिथोस्फीयर है उसको हम चीर फाड़ तोड़ के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, तो उसमें जो तापमान है, टेम्परेचर है ना, वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर 1 किलोमीटर की ऊंचाई पे हम जाएंगे नीचे तो क्या होगा कि वहाँ का तापमान है वो 30 सेल्सियस तक इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। और हम सबको बताया कि वहाँ पे मैग्मा भी होता है। मैग्मा मतलब क्या है कि जो आपने लावा देखते हो ना, उसके अंदर लावा ही होता है, ठीक है। और लावा के साथ साथ क्या होता है, गर्म गैसेस भी होते हैं, ठीक है, हीट भी होती है। और वो क्या करती है, वो जो प्रेशर है ना वो क्रिएट करती है, ठीक है, दोनों साइड से, अपर साइड भी से और डाउन साइड से। इसीलिए तो जो हमारा लिथोस्फीयर है वो जल्दी से टूटता नहीं है। हाँ, ये बात अलग है कि लिथोस्फीयर है वो दोनों, यानी कि जीवावरण और वनस्पति जीवन, उन दोनों के साथ कन्वर्सेशन है, ठीक है, उन दोनों के साथ एक अच्छा सा रिलेशन है। हम सबको पता है कि हमारा घर है, हमारी स्कूल है, हमारा जो पानी का है, जो हमारे उद्योग है, वो सब कुछ किसके ऊपर है, लिथोस्फीयर के ऊपर ही आया हुआ है। और लिथोस्फीयर में से ही हमें मिनरल्स और क्रूड ऑयल भी मिलते हैं, ठीक है। और साथ साथ लिथोस्फीयर ही हमें फूड के लिए फार्मिंग भी करने देता है। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि फूड से लेके रहने तक सब चीज़ें वो हमें लिथोस्फीयर प्रोवाइड करता है। ओके, तो अब बात करते हैं हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या है? The proportion of water area is more on the earth than the land area. The area of the earth's surface occupied by water is known as the hydrosphere. Approximately 71% of total earth's surface is covered with the water. This area of the earth's surface is so vast the continent appeared as if an island. A part of the earth having the huge water mass are known as the ocean. They are respectively well known as the Pacific and the Atlantic and the Indian and the Antarctic Ocean. Ocean on the earth are very deep and huge. 10 to 11 kilometer deep valley are there in the bottom. Various landforms like the earth's surface are there in the bottom of this ocean. 97% of total earth's water is found in the ocean and it is a sail water. Remaining water approximately 2/3 part in the form of the ice sheet on the poles and on the other high mountain like a Himalayas. The water which is lying under the earth crust flow in the form of a lake and river is a very less in proportion. Living creature and plants on the earth cannot survive without the water. It is available through the food and or thoughts. Moisture from the air. The existence of the hydrosphere is the existence of the living being. Most of the humidity for the earth's rain comes from the ocean. At the bottom of the sea, there lie a large amount of the precious minerals. Salt is obtained from the water and its bottom contains minerals like magnesium, iron, tin, etc. Ocean is also a stock of a protein-rich food for the humans. There is a humorous power in the sea and ocean waves, current and tides of the ocean. By the management and usage, electrical energy can be obtained. The ocean have developed as a waterway. Waterway are also more favorable in the trade of a different countries. Okay? चलो देखते हैं हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर मतलब क्या कि पृथ्वी के ऊपर जितना भी पानी है ना, वो उन सब पानी को क्या कहते हैं, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। ओके, पृथ्वी जिससे भी घिरी हुई है पानी के एरिया से, उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर का एरिया कितना है? 71% है, ठीक है। हमने देखा था ना, क्या देखा था कि जो लिथोस्फीयर है वो 29% है, ठीक है, और जो हाइड्रोस्फीयर है वो 71% है। टोटल हो गया ना 100%। तो अर्थ है वो 100%, उसमें से 29 है वो क्या है, लिथोस्फीयर, और 71 है वो हाइड्रोस्फीयर। ओके, वेरी गुड। चलो आगे देखते हैं।
हाँ, वो बात अलग है कि जो हाइड्रोस्फीयर है उसके अंदर भी जो लिथोस्फीयर है उसका लेयर आया हुआ है, ठीक है। हाँ, और अगर मान लो कि पृथ्वी पे बड़ा सा ही जो वाटर है वो कनेक्ट हो चुका है, ठीक है, इकट्ठा हो गए एक जगह पे, तो उसको हम महासागर के से भी जानते हैं, जैसे कि पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, हिंद महासागर है, ठीक है। तो ऐसे बड़े 4 महासागर भी हमें देखने को मिलते हैं जो पृथ्वी से बड़े, मतलब कि पृथ्वी में सबसे बड़े भी हैं और सबसे ऊंडे भी हैं। हाँ, उसकी जो डेप्थ है, ठीक है, उसकी ऊंडाई है वो कितनी है, 10 से लेके 11 किलोमीटर तक उसकी ऊंडाई आई हुई है, ठीक है। साथ बात करें तो पृथ्वी में जितना भी पानी है ना, टोटल पानी, ठीक है, टोटल पानी कितना होगा, 100% ही होगा, किसी का भी टोटल तो 100% ही होता है। उसमें से 97% है ना, वो पानी है, वो क्या है, सॉल्टी वाटर, यानी कि खारा पानी है, और वो भी सारे समुद्रों में देखने को मिलता है। और बाकी क्या बचा है, कितना बचा है, 3%, वेरी गुड। तो 3% पानी है ना, वो कहाँ पे है, तो वो है हिमालय और ऐसे जो माउंटेन है, ठीक है, जहाँ पे आइस कैप होता है, मतलब कि बर्फ जम जाती है, वहीं पे है, ओके। और जो लेक्स और रिवर्स में पानी है वो तो बहुत ही कम मात्रा में हमें देखने को मिलता है। अब देखते हैं, जो पृथ्वी पे जो भी जीव और वनस्पति रहते हैं ना, वो वाटर के बिना अपना काम चला सकती नहीं, ठीक है। हमारे फूड के साथ और हवा के साथ भी क्या चाहिए, हमें वाटर भी चाहिए। और हवा भी हमें कैसे लेती है, तो ऐसी हवा लेती है जिसमें थोड़ा सा वाटर भी मिक्स हो, यानी कि बेस वाली हवा हम लेते हैं, ठीक है। और जलावरण सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, मतलब कि हाइड्रोस्फीयर है वो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, ठीक है। हाइड्रोस्फीयर के अंदर भी कई सारी जीव सृष्टियां बसती है। जैसे कि हम बात करें तो हाइड्रोस्फीयर में कई सारी कीमती खनिज भी मिलती है, और हाइड्रोस्फीयर में से हमें सॉल्ट भी मिलता है, और उसके साथ साथ मैग्नीशियम भी है, आयरन भी है, और टिन भी हमें मिलता है, ठीक है। और फिश भी हमें मिलती है, ऐसी कई सारी चीजें भी मिलती है। और आज के टाइम में हाइड्रोस्फीयर है वो किसका काम करती है, तो वो है सेल का काम करती है, मतलब कि एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बोटिंग वो सब कुछ होता है ना, इसीलिए। अब बात करने वाले हैं एटमॉस्फेयर नंबर 3। The Earth is surrounded by a layer of a gases up to the approximately height of the 850 to 1000 kilometer. The layer of a various gases is called the atmosphere. Atmosphere cannot be seen with the naked eye. Various gases, water vapor and dust participate, particles of the asteroid, salt participate, and even a microorganism insect are mixed with the atmosphere. Atmosphere is colorless, outless and tasteless as well as transparent. Atmosphere comprised of a soil, liquid and gaseous matter. Major gases is atmosphere are nitrogen, oxygen, argon, carbon dioxide and ozone, etc. The atmosphere near the earth surface is dense. अब हमें यहाँ पे एक पिक्चर भी दिया गया है, ग्राफ दिया गया है, वो हम बाद में समझेंगे, पहले देख लेते हैं। As we go above the earth's surface, ratio of the most gases in the atmosphere decrease. Since the carbon dioxide is heavy gas, its density is low state of the air. The decrease in the above start the presence of the carbon dioxide after the height of the 20 kilometer, oxygen after the height of 110 kilometer, and nitrogen after the approximately height of the 130 kilometers is seen decreasing. At the high altitude here are only light gases are like hydrogen and helium. The ratio of ozone gas in the atmosphere is very less. These gas absorb alternative violet rays from the sun and protect the plants from the excessive heat of the sun. These gas mostly privilege in the opening ground at the time of the early morning. In the same way, its ratio is more than in the air around the seashore. That is why people go for morning walk in such a places, because of ozone is healthier gas. Things. Why do mountaineers carry oxygen bottle with while climbing a mountain? Due to the various particles in the atmosphere, sunlight is seen spreading on the earth. It does not come dark or bright suddenly. The sky color of a dawn before the sunrise and dusk after the sunset are because of the dust particles. The rays are reflect through the dust participate and we get sunlight. Sound can be here with the medium of the atmosphere. The waves of the sound and light are reflect in the atmosphere and returns to the earth surface of the
that transmission of the radio and television become the possible. Heavily objects such as meteorites burn due to the friction of the atmosphere and get damaged. Thus, the atmosphere proves as a natural shield of the earth. अब बात करने वाले हैं हमारे एटमॉस्फेयर यानी कि वातावरण की। ठीक है, तो पृथ्वी के चारों ओर जो वातावरण है वो लगभग 800 से लेके 1000 किलोमीटर तक लंबा आया हुआ है, वो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। ठीक है, हाँ, एटमॉस्फेयर है वो, उसके पास ना तो कोई रंग है, ना तो कोई गंध है, और ना ही उसका कोई टेस्ट भी है, और वो एकदम बिल्कुल पारदर्शक है, ट्रांसपेरेंट है, मतलब कि उसके आर पार भी सब कुछ चला जाता है। ठीक है, हमें कुछ भी दिखता नहीं है। हाँ, जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसेस के फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में, और कई बार तो सॉलिड फॉर्म में भी समावेश होती है हर चीज़ों का। ठीक है, और स्पेशली बात करें तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, आर्गोन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन है, वो सब कुछ मेन है। ठीक है, वो मेन गैसेस है एटमॉस्फेयर में। हमें यहाँ पे बताया गया है कि नाइट्रोजन है वो 78.03% है, ऑक्सीजन है वो 20.99 है, फिर आर्गोन है वो 0.94 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03 और अदर गैसेस है वो 0.01% पे दिखने को मिलता है। ओके, और जैसे जैसे हम पृथ्वी के ऊपर ऊपर जाते जाएंगे तो क्या होगा कि वहां पे जो हवा का लेयर है ना वो कम कम होता जाएगा। ठीक है, जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या है, वो एकदम बहुत ही भारे गैसेस है। ठीक है, वेट में बहुत ही भारे है, तो वो क्या होगा कि उसका जो लेयर है वो नीचे आएगा, जो भी हल्का होगा वो ऊपर जाएगा, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पे 0 किलोमीटर है वो अर्थ है, 20 किलोमीटर में जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें कार्बन डाइऑक्साइड देखने को मिलेगा। ठीक है, और उसके ऊपर जाएंगे हमें यहाँ पे 110 किलोमीटर तो वहाँ पे आएगा हमें ऑक्सीजन, और उसके ऊपर 130 से अप जाएंगे तो क्या मिलेगा, हमें देखने को मिलेगा नाइट्रोजन। ठीक है, साथ साथ हमें उसके ऊपर भी जाएंगे 130 से ऊपर तो हमें मिलेगा हीलियम और हाइड्रोजन। ओके, इतने सारे हमें गैसेस देखने को मिलते हैं। हमें ये सब कुछ बताया कि ओजोन गैस है वो, उसका जो लेयर है और उसका जो फॉर्म है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ही कम है, लेकिन वो क्या काम करता है कि जो सूर्य से आने वाले वायोलेट किरण है ना, रेज है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, और जो सूर्य की जो प्रचंड गर्मी है ना उससे पृथ्वी की रक्षा भी करता है। इसीलिए तो सब लोग है वो सुबह को खुले मैदान में दौड़ने के लिए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सनराइज भी नहीं हुआ होता है और गर्मी भी कम होती है, और ओजोन है वो हमारे शरीर के लिए भी आवश्यक तत्व है। जो सन रेज है वो पृथ्वी पे आती है, वो क्या होती है कि ना तो हम एक साथ है वो लाइट भी मिलती है और ना ही एक साथ है वो अंधेरा भी हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एटमॉस्फेयर है ना उसमें क्या होता है कि उसमें छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं और डस्ट पार्टिसिपेट यानी कि धूल के रंजकण भी होते हैं। ठीक है, वो क्या करते हैं कि ना तो वो सन के रेज को एक साथ है वो रिफ्लेक्ट करते हैं, यानी कि डायरेक्ट पहुंचा भी नहीं देते और डायरेक्ट बंद भी नहीं कर देते। ठीक है, इस तरह से वो वर्किंग करते हैं। आगे देखते हैं, और एटमॉस्फेयर इसी की वजह से तो हमें है सुनाई देता है एक दूसरे के साथ। ठीक है, वरना तो हम सुन भी नहीं सकते। और फाइनली हम ये कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर है वो हमारी नेचुरल शील्ड है। ठीक है, कुदरती ढाल है। आगे बात करते हैं बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर द पार्ट ऑफ द एनवायरमेंट लाइक लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर wherever living being is seen alive is called biosphere. Biosphere is comprehense of a variety of a life form. These living sphere included human, vegetation and animal life. Living being on the earth surface get food from the biosphere. Organism of the biosphere provide a variety of the food and raw material to the human world. Thus the existence and the substance of a human life is based on the biosphere. आगे बात करते हैं impact of a human activities. Biosphere is mostly in the balanced condition, but when the human disturbance disrupt the equilibrium of the system, then only many problems arise. Natural food chain is at a risk because the development is being done by the exploiting the environment. This condition is harmful for the human being as well as for the environment. ठीक है, अब हम सबको बताया कि जीवावरण यानी कि बायोस्फीयर वो क्या है, कि जो हमने देखा था लिथोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और हाइड्रोस्फीयर। ठीक है, उनके बाकी जो भागों में जो भी जीव सृष्टि रहती है उसको कहते हैं बायोस्फीयर। ठीक है, और पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही ऐसा ग्रह है जिसमें बायोस्फीयर है वो दिखाई पड़ती हैं। ओके,
और बायोस्फीयर में सिर्फ इंसान ही नहीं आते, उसमें वनस्पति भी आती है, उसमें एनिमल्स भी आते हैं, ठीक है, प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं, और हाइड्रोस्फीयर में जो भी एनिमल्स अंदर रहते हैं यानी कि जो फिश है, क्रोकोडाइल है, वो सब भी बायोस्फीयर में आते हैं, ठीक है। और जो अर्थ पे जो भी बायोस्फीयर रहते हैं वो अपना फूड कहाँ से लेते हैं, तो वो भी अपना फूड है वो बायोस्फीयर में से ही लेते हैं। और इस तरह से बायोस्फीयर है और बाकी के 3 जो स्फीयर है वो क्या करते हैं, वो जो ह्यूमन लाइफ है, ठीक है, उसको फूड और खाना प्रोवाइड करते हैं। अब क्या होता है कि ह्यूमन एक्टिविटीज़ की क्या इफेक्ट होती है। अब हम सबको बताया कि जो बायोस्फीयर है वो पहले तो बैलेंस थी था, ठीक है, सबसे ज़्यादा बैलेंस ही था। जब तक हम उसमें कुछ चेंजेस नहीं करेंगे तब तक तो वो बैलेंस ही रहेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस आएगा नहीं। फिर क्या होगा कि हमने हमारा डेवलपमेंट करने के लिए क्या किया कि जो एनवायरनमेंट है ना उसको डैमेज करना शुरू कर दिया, ठीक है, उसको नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया था। और फिर क्या हुआ कि जो फूड चेन है, ठीक है, वो भी प्रॉब्लम में आ गया और फाइनली हमारा एनवायरनमेंट भी है वो हार्म होना शुरू हो गया। चलो देख लेते हैं एक्सरसाइज में क्या क्या दिया गया है, ठीक है। एक्सरसाइज इसमें पहला क्वेश्चन आंसर इन 1 एंड 2 लाइन में देना है हमें। नंबर 1, विच आर द मेन स्पीयर ऑन द अर्थ। अर्थ के कितने स्पीयर है, 4 है, बताया ना आपको, लिथोस्फीयर, बायोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड, सही है आप। नंबर 2, व्हाट इज द मीन बाय लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या है, मैंने आपको बताया था ना, ठीक है, पृथ्वी के आसपास का जो लेयर है वो, जिससे वो भी बताया था, लिथो मीन्स सॉइल, ठीक है, जो रॉक से सॉइल से बना हुआ है ऐसा स्पीयर यानी लिथोस्फीयर। नंबर 2, हाइड्रोस्फीयर एंड मेड ऑफ। हाइड्रोस्फीयर है वो किससे बना है, तो बड़े बड़े ओशियन से बना हुआ है, रिवर्स, ऐसी सब कुछ वाटर से बना हुआ है। नंबर 4, विच आर द मेन गैसेस ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में मेन गैसेस कौन कौन से हैं, मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन और अदर गैसेस, वो सब कुछ मेन है, ठीक है, हमने वो ग्राफ वाले पिक्चर में भी देखा था। नंबर 5, हु इज द इंक्लूडेड इन द बायोस्फीयर। बायोस्फीयर में कौन कौन है, मैंने बताया था उस तरह से, प्लांट्स है, एनिमल्स है और ह्यूमन बींग्स भी है। फिलिंग द ब्लैंक्स देख लेते हैं। नंबर 1, ब्लैंक स्फीयर कंसिस्ट ऑफ द माउंटेन प्लेट्स एंड प्लांट्स, ठीक है, कौन सा स्फीयर है जो बड़े बड़े पत्थर से, उच्च मैदान है और सिर्फ मैदानों को भी रखता है, तो उसमें आएगा लिथोस्फीयर। नंबर 2, स्ट्रेच ऑफ एटमॉस्फेयर इज अप टू ब्लैंक किलोमीटर अबाउ द अर्थ सरफेस, ठीक है, पृथ्वी पे कितना आवरण आया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ आएगा 800 टू 1000 यानी कि 800 से लेके 1000 तक ऐसा फैला हुआ है। नंबर 3, ब्लैंक गैस इज प्रेजेंट इन द मैक्सिमम प्रोपोर्शन ऑफ एनवायरनमेंट, तो कौन सा गैस है वो सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, तो आएगा नाइट्रोजन, ठीक है, क्या आएगा, नाइट्रोजन गैस, और वो भी 78.03% में। चलो देख लेते हैं, एक्सप्लेन आपको करना है, स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। नंबर 1, एक्सीडेंस ऑफ द ऑक्सीजन इन द एनवायरनमेंट इज अप टू द हाइट ऑफ द 150 किलोमीटर, ठीक है, ऑक्सीजन है वो 150 किलोमीटर पर देखने को मिलता है, तो वो गलत है, 110 किलोमीटर पे देखने को मिलता है। नंबर 2, द ओशियन हैव बिकम अवर वाटरवे। ओशियन है, ठीक है, वो हमारे लिए वाटरवे है, ठीक है, हम उसके रास्ते से कहीं पर भी जा सकते हैं, हाँ सही बात है। नंबर 3, बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ अ वेराइटी ऑफ अ ह्यूमन फॉर्म, ठीक है, क्या है कि जो जीवावरण है उसमें अनेक प्रकार की जीव सृष्टि का समावेश होता है, तो वो सही है, बायोस्फीयर में तो होता ही है ना। नंबर 3, बायोस्फीयर डेवलप ऑन द अर्थ सरफेस बिकॉज ऑफ द वाटर एंड एयर। बायोस्फीयर है वो पानी और हवा के लिए ही वहाँ पे जीव सृष्टि वो डेवलप हुई है, तो वो भी सही बात है। नंबर 3, ओजोन गैस प्रोटेक्ट द लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ सरफेस फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेज फ्रॉम द ऑफ द सन, तो वो भी सही है, अल्ट्रावायलेट से हमें बचाती है ना। और आपको शॉर्ट नोट लिखनी है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, इंपॉर्टेंस ऑफ द लिथोस्फीयर, ठीक है, और हमारा यूनिट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।